Hello all. So today we have Ajay Yadav with us, who has secured All India rank 276, and he has secured this rank with geography as his optional. And geography में इनका जो score है, that is one of the most stable scores I must say. और जो इन्होंने 2019 में first time interview दिया था, when जब इनका score था around 273 और उसके बाद 2020 में अगेन ही गेव विद ज्योग्राफी ऑप्शन, वहां पर स्कोर 250 था। और अभी जो रिसेंट जो इनका अटेम्प्ट है जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ है, एंड ही विल बी गेटिंग आईएएस ऑफ कोर्स, उनका उस टाइम में है जो स्कोर है दैट इज 277 इज द स्कोर। सो हम ज्योग्राफी ऑप्शनल स्पेसिफिक बात करेंगे ज्यादा, और जीएस के लेवल पे हम कुछ और डिस्कशंस करेंगे। एंड ही हैज बीन पास्ड आउट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, तो उसका भी एक्सपीरियंस हम जानेंगे, और इनका बैकग्राउंड जो रहा है, अपने जो स्ट्रगल्स रहे हैं इनके, उस पर भी फोकस करेंगे, और क्या ज्योग्राफी ने इनको डिच किया पूरे ही टाइम पीरियड में, उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड आई एम अलॉन्ग विद हिमांशु सर विल बी टेकिंग द पॉडकास्ट अहेड। First of all, congratulations, Ajay, and really, what to say, it has been a very good journey with you. So, tell us about, introduce yourself and tell us about how was this journey in UPSC. Thanks for the guidance, IS. They are providing me this opportunity to speak in front of you. If I talk about briefly about me, my graduation completed in 2017 from IIT Delhi. My stream was textile technology, and since then I am preparing for the civil services. In 2019, I have written first time mains with geography as an optional, and again 2020 I have written mains. In 2021, I have skipped that attempt because I was not scoring well in interview and in essay. So I focused more on mains and geography optional. But with my marks, which sir has told you, geography has never cheated with me. I always scored good in the geography optional, whether it was 2019 attempt, 2020 attempt, or 2022 attempt. Even my UPPCS also, I have scored well in the geography optional with 249 marks. So through this conversation, I will try to remove all those prejudices which is against geography as an optional, that geography is not awarding you with good marks. Every time I have written with the geography, I have scored well, and there's nothing like I have taken geography was my background, or I have done any kind of MA BA from the geography. I was from the graduation from the IIT Delhi, and there also I have not taken anything very serious about geography. What the basic things which I have did for my geography is I have taken help from the Himanshu sir's class notes, and I have done twice this 500 plus classes. And I think this is the core part of my geography optional, which has awarded me. So, Ajay, there is a kind of perception that ultimately, if you talk about geography, geography has not been performing well. And this is a kind of very common perception. If we actually look into the number of people who are selected every year, it is very stable. And particularly if you look from the past 4 5 years, it has been stable from 2017, 18, 19, all I have seen, because we have also given very, very good results. So why do you think that this kind of negative perception has built up? I think, sir, I have also felt the same. That there is negative perception around geography as an optional. But I think, sir, it is not about geography as an optional. Geography is, I think I have. There are many of my friends which have taken geography as an optional. They are getting good marks from the geography. I think there are certain issues with the persons, their approaches, their strategies. If you are consolidating your notes, if you are revising your notes properly, then similar to other optional, whether it is any kind of optional you are taking, if they are awarding you a good mark, geography is also awarding with the same. So these are only the perception which are generated by, I think, with certain section of students who have changed their optionals because of because they do not want to change their strategies. They do not want to work on some sort of value additions part, which is currently in the need for the geography as a subject. I have did that value addition through 500 plus classes in 2019 and again in 2022, and that has awarded me. And I think my answer was good. I was scoring good in my test series also, and that has replicated in my final means answers also. So I think it is more about the prejudices of those students which have changed their optional, rather than there is no issue with the geography. If geography has certain inherent issues of evaluation or some sort of questions, then I think
I should have punished with the geography as an optional. But if you see my marks, they are very stable, and I'm scoring again and again with the same strategy, same content, same approach. If I can score again and again with the same strategy and same approach, then I think there is no issue with the geography as an optional. अजय, मैं आपसे हिंदी में बात करता हूँ, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अजय के साथ इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ ही हैज़ नेवर टुक एनी फाउंडेशन क्लासेस, कोई फाउंडेशन क्लासेस नहीं करी हैं। बेसिकली इसने क्या है कि क्लास नोट्स पढ़े हैं, मोस्टली गाइडेंस के, और कोई भी बुक रेफर नहीं करी। दिस इज ऑल्सो सरप्राइजिंग एलिमेंट, कोई बुक रेफर नहीं करी है। आई हैव सीन रिसेंटली इन मेनी इंस्टीट्यूट्स, आपको क्या है कि पहले ही दिन सविंदर सिंह की सारी बुक्स लिखवा देंगे, पेपर 2 के लिए खुल्लर, माजिद हुसैन लिखवा देंगे। ऑफ कोर्स दीज बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट, बट आपने इन बुक्स को नहीं रेफर किया, तो इससे आपको कितना डेफिसिट फील हुआ, और क्या ये बुक्स एंड टू एंड कवर टू कवर रिक्वायर्ड भी हैं यूपीएससी के लिए, स्पेशली ज्योग्राफी के लिए, ऑप्शनल के लिए, और अगर इनको नहीं करते हैं तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव है? एट द सेम टाइम अगर इन बुक्स के साथ जाते हैं तो ऑफ कोर्स सी आप बात है, आपको क्या है कि ऑप्शनल बहुत लेंदी फील होगा, बहुत लेंदी लगेगा, और कम से कम 3 साल निकल जाएंगे ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के अंदर। बट अगर आप इसको बहुत सेलेक्टिवली रीड करते हो, तब आपको कैसा परसेप्शन मिलता है, या तब आपकी जर्नी कितनी शॉर्ट हो सकती है, या अगर आपके पास सारी चीजें कंसोलिडेटेड हैं तब आपके पास कैसा रहेगा, इसका आंसर आप दो। और आई वांट कि जो हिंदी स्पीकर्स हैं हमारे, उनको भी क्या है कि चीज जाए, तो आप बताइए। बिल्कुल, जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ 2018 में जब मैंने ज्योग्राफी एस एन ऑप्शनल के साथ स्टार्ट किया, तो इनिशियली मुझे भी रिकमेंड किया गया कि सविंदर सिंह को ऐसे फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में उसे रीड करना पड़ेगा, मस्ट है। बट व्हाट आई फाउंड कि एक तो बहुत बुक बल्की है, एंड कंटेंट टू द पॉइंट नहीं है, अपडेटेड नहीं है, and beside this, if you have read with this Savinder Singh, you have to do some sort of value addition, आपको different different sources से करना पड़ेगा। तो I have read 3-4 chapters, but I do not find it very worthy। ये मेरा हॉनेस्ट एग्जाम्पल है कि आई डू नॉट फाइंड इट वर्दी। आई थिंक कि आंसर में हमको सिर्फ 150 वर्ड्स लिखने हैं, या फिर अगर 15 मार्कर का है या फिर 20 मार्कर का है तो नियर अराउंड 200-300 वर्ड्स लिखने हैं। सो इट विल बी गुड अगर हमें कहीं से कंसोलिडेटेड मटेरियल मिल जाए, और जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को अच्छी तरीके से कंपाइल्ड किया जा सके। तो उसी रिसर्च में आई फाउंड सम गुड कंटेंट फ्रॉम ORN, एंड आफ्टर देन आई ऑल्सो प्रेफर हिमांशु सर के जो क्लास नोट्स हैं, एंड आई फाउंड कि वो सफिशियंट हैं 200-300 वर्ड्स को लिखने के लिए। देयर इज नो नीड टू रीड दैट 400-500 पेजेस ऑफ बुक्स। एंड अगर आप बुक्स को रीड करने से ही नहीं होगा, उसके बाद भी कंसोलिडेशन करना होगा, बुक से खुद के पॉइंट्स बनाने होंगे, खुद सिलेबस वाइज टॉपिक्स को कवर करना होगा। अगर ये काम पहले से किसी ने किया हुआ है, तो आई थिंक इट विल बी बेटर कि हम उन नोट्स को पढ़ें, उनको सही से कंसोलिडेट करें, सही से उनको मेमोराइज करें। एंड विद माई अटेम्प्ट्स आई कैन एश्योर यू कि दैट आई हैव नेवर रीड एनी बुक। किसी भी बुक को मैंने कहीं नहीं पढ़ा, सिर्फ जो क्लास नोट्स हैं हिमांशु सर के, उनको प्रेफर किया है। उससे पहले ORN में किसी के नोट्स मिले मिले थे, उनको थोड़ा ऐसे स्टैटिक नोट्स के रूप में प्रेफर किया। इसके अलावा 500 प्लस के थ्रू वैल्यू एडिशन किया है, एंड आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशियंट। इससे आप इजीली 280-285 का स्कोर ला सकते हो, जो कि सफिशियंट है आपकी टॉप 20 टॉप 50 में रैंक लाने के लिए। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे हिमांशु सर से पूछना चाहूंगा, बिकॉज आई वॉज बीइंग वन ऑफ हिज स्टूडेंट एंड नाउ एज अ पार्ट ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। आप सर बताइए कि आपने जब पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो रेवोल्यूशन किया है, ठीक है, नोट्स के लेवल पे, तो आपने जो बुक्स देखी और आपने उसके कंडेंस नोट्स बनाए, जो कि आजकल मार्केट में और ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या एक इवोल्यूशन था, क्या एक थॉट प्रोसेस था कि बुक्स कौन सी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, और जो नोट्स से आपने सारी चीजें निकाली हैं, जूस जो निकाला है सारी बुक्स से, उसको आपने कैसे कंसोलिडेट किया और वो कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है? अगर मैं अपना इवोल्यूशनरी जर्नी देखूं एज अ टीचर, तो अ, इसमें मैं दो तरह की क्लासेस लेता रहा हूँ। और एक तो फाउंडेशन बैच की जो क्लासेस होती हैं, और दूसरी जो 500 प्लस की जो क्लासेस होती हैं। इसमें क्या हुआ है, मेरे को दोनों कोर्सेज से बहुत क्रॉस लर्निंग, बहुत अच्छी क्रॉस लर्निंग मिली। जब मैंने 500 प्लस कोर्स स्टार्ट किया, तो उसमें क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर वाइज, क्योंकि वहाँ पे पूरा टीचिंग कर रहा था, तो अल्टीमेटली फिर मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करनी थी वो नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली नीड क्या है, तो उसी वो जो मैंने लर्निंग्स 500 से ली, उसी को मैंने रेप्लिकेट किया अपने फाउंडेशन क्लासेस में।
और उस तरह से फिर वो नोट्स बने और वो पर्सपेक्टिव्स के नोट्स, अगर आप देखोगे तो 2015 के मेरे नोट्स उतने बेटर नहीं है पर्सपेक्टिव्स के, बट जैसे ही आप 2017 में पहुंचते हो पर्सपेक्टिव्स के नोट बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि अगर देखोगे तो 2015 में ही मैंने अपना 500 प्लस क्लासेस शुरू किया था। तो उसके बाद जब वो एक दो बैचेस निकल गए तो मेरे को पूरा रियलाइजेशन हो गया, एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी आ गई कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्या ज़रूरत है और क्या नहीं है। और फिर वहां से डेफिनेटली वो पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो गया। जैसे हम्म, रियलाइजेशन एक स्टूडेंट को होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के बाद और उसका कंटेंट का उसको विजिबिलिटी दिखती है कि यार ये स्पॉट्स इंपॉर्टेंट हैं, वैसे ही क्या है कि विजिबिलिटी आपको एज अ टीचर मिली बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बात है। तो अगर मैं अजय आपसे पूछना चाहूँ कि कोई स्टूडेंट है जो ज्योग्राफी ऑप्शनल या ज्योग्राफी या सब्जेक्ट को पसंद करता है, बट वो जब ओआरएन में आता है तो उसको कई सारे क्या कि सेलर्स मिलते हैं कि भैया ये वाला ऑप्शन लगा लो, छोटा है। तो वो अपने इंटरेस्ट से अपने पैशन से क्या है कि ड्रिफ्ट करता है, ठीक है। और वो फिर क्या है कि या तो दूसरा ऑप्शन लेता है, या अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी चूज भी करता है तो उसको इतना फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्योग्राफी ऑप्शनल से निकाल ले। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्योग्राफी ऑप्शन लेने वाले स्टूडेंट के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी कि उसको क्या करना है ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो ज्योग्राफी को पढ़ ले, रिवाइज कर ले, कंसोलिडेट कर ले और एक यूपीएससी लेवल का आंसर ले। जी सर, ये बिल्कुल सही है। आई हैव आल्सो फेस द सेम थिंग कि ओआरएन में एक नेगेटिविटी है ज्योग्राफी एस एन ऑप्शनल को लेके। लेकिन मैं अगेन सेम चीज कहना चाहूंगा कि ज्योग्राफी एस एन ऑप्शनल में कोई कमी नहीं है। और ज्योग्राफी एस एन ऑप्शनल सिर्फ मेरा ही नहीं, कई ऐसे मेरे खुद के कोलीग्स भी हैं जिनको उसने अच्छी तरीके से अवॉर्ड भी किया है। तो ऑप्शनल में कोई भी इशू नहीं है। इशू अगर कहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी अप्रोचेस में है। सिमिलरली जैसे कि मेरा पहला मेंस था 2019 में और मेरा 273 स्कोर बना था, वो डिसेंट स्कोर था। तो सिमिलरली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर करूंगा। तो पहला तो ये है कि जैसे कि जो स्टैटिक पार्ट है आपने जहाँ से भी फिनिश किया हुआ उसको थोड़ा कंसोलिडेट कीजिए। जैसे कि हर टॉपिक पे, चाहे वो पॉपुलेशन हो, सेटलमेंट हो, पर्सपेक्टिव हो, फिजिकल ज्योग्राफी में कोई टॉपिक हो, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, उनको कंसोलिडेशन कीजिए उनको थोड़ा कम पेजेस में, ताकि आप बेटर रेप्लिकेट कर पाएं अपने आंसर्स में। उसके बाद जैसे कि अगर हम ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज पेपर्स को एनालाइज करें कि यूटिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस की का जो नंबर है थोड़ा बढ़ रहा है। तो अब ह- एक लेवल का वैल्यू एडिशन की नीड होती है। अगर आप वैल्यू एडिशन खुद कर सकते हो तो कीजिए, अदरवाइज 500 प्लस क्लासेस या फिर कोई और रिसोर्स जो आपको लगता है सही है उस लेवल का, उसको लेके आइए, ताकि आपके पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ फैक्ट्स, केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स का कंपाइलेशन हो। तो अगर इतना किया हुआ है, सफिशिएंट तरीके से आपने कंसोलिडेशन किया हुआ है, वैल्यू एडिशन किया हुआ है एक लेवल का, इसके अलावा एक मिनिमम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है, और आपको अंदर से ये एनालाइज है कि ज्योग्राफिकल आंसर्स के लिए जो कि एक इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ केस स्टडीज हों, उसमें डायग्राम्स हों, ज्योग्राफिकल कीवर्ड्स हों, उनको सही तरीके से आपने स्प्रिंकल किया है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, आप हर अटेम्प्ट में एक अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ये बेसिक नीड है, ये बेसिक अप्रोच है ज्योग्राफी की, जो जितना जल्दी हो हम समझ लें। और आई कैन से कि ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल विल नेवर चीट विद यू। और जो भी ये प्रेजुडिसेस हैं वो ज्योग्राफी में कोई इशू नहीं है। ज्योग्राफी में जो अप्रोचेस हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं कि सिर्फ स्टैटिक पोर्शन को करके जाओ, उससे मार्क्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़े फंडामेंटल चेंजेस हैं जिनको अगर हम अपने अप्रोचेस में इंटीग्रेट कर लें तो निश्चित रूप से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल के साथ टॉप कर सकते हैं। इसमें मैं भी एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा। आई गेस हिमांशु सर ने ही ये मुझे चीज को क्या है कि एक्सप्लोर करवाया कि अगर आप देखो तो ज्योग्राफी को अगर हम देखें एज अ सिलेबस फॉर यूपीएससी तो उसमें 65% जो है अपने पास ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है। और 35% जो है हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी है। अगर आप बिल्कुल। पेपर 1 पार्ट ए देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी है, और पेपर 2 के अंदर फिजिकल सेटिंग और कंटेम्प्रेरी इश्यूज वाला जो टॉपिक है दैट इज आवर फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ पार्ट बनते हैं। अदरवाइज एंटायरली आप अपना ज्योग्राफी ऑप्शन का सिलेबस है दैट इज 65% ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। बट इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्या हो रहा है, एंड आई वाज आल्सो विक्टिम ऑफ दैट, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स में वो 65% जो पोर्शन है ह्यूमन ज्योग्राफी का उसको पढ़ाने के लिए 35% टाइम आपको मिल रहा है, या कोचिंग में जो टीचर है वो आपको 35% फोकस दे रहा है 65% पोर्शन के लिए। और जो सिर्फ 35% फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है उसके लिए आपको 65% आपको क्या है कि टाइम का एम्फेसाइज दे रहा है। तो वो जो डिफरेंशियल्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंशियल्स क्या है कि फिर आपकी प्रिपरेशन में भी रिफ्लेक्ट होती हैं, आपकी मार्किंग में भी रिफ्लेक्ट होती हैं, और उससे क्या है कि फिर आपका परसेप्शन ऐसा बन जाता है कि आपने 6 महीने की या 5 महीने की कोचिंग, उसमें 3 महीना तो टीचर सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, और बाद में वो सिर्फ क्या है कि 2 महीने में 1.5 2 महीने में सिर्फ क्या है कि वो ह्यूमन ज्योग्राफी के नोट्स देके और बैच को रैप अप कर दे रहा है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है मेरा। हम्म।
अ, मुझे याद है कि 2018 की बात है। 2017 का जब रिजल्ट आया 2018 में, तो प्रथम वाज माय स्टूडेंट, सो प्रथम गॉट रैंक 5 दैट ईयर। सो प्रथम मेरे पास आया और वी टॉक्ड ऑन नंबर ऑफ थिंग्स, कैसे अप्रोच एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर प्रथम ने मुझे एक एडवाइस किया कि सर, आपको पता है कि आप यू आर द ओनली टीचर आई हैव मेट हियर हु हैड कमांड इन ऑल द 4 एरियाज ऑफ ज्योग्राफी पेपर। पेपर 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी, इसी तरह से पेपर 2 का सेक्शन ए, सेक्शन बी। यू हैड इक्वल कमांड ओवर ऑल द एरियाज। मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसका सारे एरियाज में कमांड होगा। और आपको, आप अगर थोड़ा सा इस पे सोचोगे, तो ह्यूमन ज्योग्राफी आपको स्टार्ट करना चाहिए। जब आप अपनी क्लासेस 500 की स्टार्ट करते हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी से स्टार्ट करिए। क्योंकि उसका रीजन ये था, उसने बोला कि आपकी फिजिकल ज्योग्राफी इतनी स्ट्रांग है कि बच्चे जब उसमें बैठते हैं क्लास में, तो वो बिल्कुल अमेज्ड हो जाते हैं, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी थोड़ा सा इजी भी है और बच्चा ग्रास्प करेगा। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, वहां से ह्यूमन ज्योग्राफी मुझे भी उसकी एडवाइस लॉजिकल लगी, तो मैंने फिर अगले जो 500 थे मेरे, तो वहां से मैंने क्या किया कि ह्यूमन ज्योग्राफी से ही स्टार्ट करता हूँ अब मैं 500 प्लस। और मार्केट में जो परसेप्शन पहले था कि मैं फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत स्ट्रांग हूँ, वो चेंज हो गया। और अब जो परसेप्शन, ये मेरे बारे में एक परसेप्शन एक बन गया है कि सर का तो ह्यूमन ज्योग्राफी अच्छा है, और वो अल्टीमेटली वो जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट था वो पीछे हो गया है। तो वो एक, बहुत सारे मतलब ये बच्चों को समझना चाहिए कि आप जो सुनते हो मार्केट में, वो बहुत सारी चीजें ना बहुत मिक्स होती हैं, और वो रियलिटी से कई बार क्या हो सकता है, बहुत दूर हो सकता है। तो जब भी आप डिसीजंस लो, तो वो डिसीजंस ना फैक्चुअल कुछ चीजों पर बेस्ड होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अगर सपोज करो कि मैं एक स्टूडेंट होता और मैं जाता कि मुझे सोच सपोज मुझे फाउंडेशन क्लासेस करनी है, तो मार्केट में सारे टीचरों के नोट्स पड़े हुए हैं, जा करके एक बार चेक करके देख लो कि किसने क्या पढ़ाया है, और तुम्हें वहीं पे आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन बेटर है। लेकिन मैं अजय ये चीज़ पूछना चाहता हूँ इस चीज़ को, और मुझे मतलब इसमें बड़ा, इसमें मैं बहुत कन्विक्शन है, और शायद तुम भी इस पे एग्री करोगे। कहीं ना कहीं तुम्हें जो अपना जो आईआईटी का बैकग्राउंड था, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस हुआ तुम्हारी प्रिपरेशन में। और मैं ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं कह रहा हूँ, मैं आईक्यू लेवल पे नहीं कह रहा हूँ। द वे द थिंग्स आर बीइंग डन इन जो आईटी में, किस तरह से हम जो बच्चे जो आईटी के होते हैं, उनको पता है कि जूस कैसे निकालते हैं और फटाफट चीजों को कैसे किया जाता है और काम की चीजें क्या है। तो क्या मतलब वो जो एक बैकग्राउंड था, उसका हेल्प हुआ तुम्हें? सर निश्चित रूप से अगर मैं आईआईटी दिल्ली का कल्चर देखूं तो वहाँ पर एक लीगेसी मिलती है, खासकर उसकी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ पे सीनियर्स, उसमें कई ऐसे होंगे जो आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, या इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में जो पहले से ही वहाँ पे सिलेक्टेड हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे एक अच्छी गाइडेंस मिलती है। तो जो मेरी अप्रोच थी, जिसमें कि एक जो फंडामेंटल कोर था, कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स, तो मुझे लगता है कि मुझे वहीं से जो टॉपर्स थे, खासकर आकाश बंसल जिनकी ऑल इंडिया रैंक 54 आई, उनसे मिला। पंकज कुमावत सर जो आईपीएस है महाराष्ट्र में, उनसे मिला। तो ये मेरे सीनियर्स थे जो लगभग हमेशा जब भी हम शाम को चाय पीने जा रहे हैं या फिर लंच पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, तो उनसे बात होती रहती थी। तो एक एडवाइस उनकी मिली। और दूसरा ये कि सर, हमेशा जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन आईआईटी से था, उससे पहले आईआईटी की प्रिपरेशन भी की थी, तो ये हमेशा एक टेंडेंसीज रहती है खासकर इंजीनियर्स में कि कैसे टू द पॉइंट चीज़ों को रखना है, टू द पॉइंट तैयारी करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जब सविंदर सिंह बुक्स रीड की तो मुझे इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगा। जैसे कि मैंने टाइम मेजर किया तो लगभग 3 घंटे हो चुके थे, और अराउंड 2 या 3 चैप्टर्स ही मैं सिर्फ रीड कर पाया था, और उसके बाद भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। लेकिन सेम थिंग 3 आवर्स की मैंने जब नोट्स के साथ फॉलो अप की तो मुझे लगा कि मेरे लगभग 5-6 टॉपिक्स भी अच्छी तरीके से कवर हो गए, कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स भी हो रहा है। और क्योंकि आंसर्स में हमें सिर्फ 300 वर्ड्स लिखने हैं, 150 वर्ड्स लिखने हैं, तो बेसिकली देयर इज नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ पीएचडी ओवर एनी काइंड ऑफ कंटेंट। तो इस टाइप की अप्रोचेस खुद ही फील होती हैं, खुद के विजडम से होती हैं। फिर मैंने ये चीज़ें अपने सीनियर्स के साथ भी डिस्कस की, एंड दे हैव टोल्ड आल्सो मी द सेम थिंग कि कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजंस एंड द एप्लीकेशंस थ्रू आंसर राइटिंग, ये कोर है मेंस का खासकर।
और नो मैटर विच ऑप्शनल यू हैव टेकन, जैसे कि अगर मैं आईआईटी की बात भी करूँ, वहाँ पर भी कई सीनियर्स के साथ डिस्कशन हुआ था कि किस ऑप्शन को लिया जाए। तो दे हैव आल्सो टोल्ड द सेम थिंग कि आप मल्टीपल ऑप्शनल को एक्सप्लोर कीजिए, और उसमें फिर जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखे उसको आप समझिए। तो आई हैव एक्सप्लोर ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, एंड आई थिंक जो मेरा डिसीजन था बिल्कुल सही था, और एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था, और अपनी अप्रोचेस के साथ मैंने उसको प्रेफर किया, तैयार किया, एंड इट हैज अवॉर्डेड मी विद गुड मार्क्स एवरी टाइम। अच्छा, इस बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी जैसे अगर ऑप्शनल लिया था तो उसमें तुम्हें जीएस में क्या हेल्प हुआ? क्योंकि जनरली मैं भी बच्चों को बताता हूँ कि काफी हेल्प होता है। तो तुम प्रैक्टिकली क्या कुछ ऐसे कुछ एग्जांपल देकर बता सकते हो कि जैसे वो जीएस में तुम्हें कैसे हेल्प किया? सर बिल्कुल, अगर आप मेरी ही मार्कशीट देखें, चाहे 2019 की देखें, 2020 की देखें, या 2022 की देखें, तो आपको उसमें दिखेगा कि जीएस 1 में मेरे कंपेरेटिवली जीएस 2 और 3 से मार्क्स अच्छे हैं। जैसे कि जीएस 1 में इस बार मेरे 110 मार्क्स हैं, जो कि अच्छे मार्क्स हैं कंपेरेटिवली। ऐसे ही अगर आप मेरे जीएस 3 में देखेंगे तो उसमें मार्क्स अच्छे हैं। और अगर इसमें जीएस 1 और जीएस 3 में अगर टॉपिक्स देखे जाएं, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का एक रेलिवेंस वहाँ पर दिखता है, खासकर ऑप्शनल का रेलिवेंस। जैसे कि अगर जीएस 1 में बात की जाए तो ज्योग्राफी एसएन टॉपिक ही है उसमें, और 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं। और जो नॉन ज्योग्राफिकल जिनके ऑप्शनल्स हैं, अगर हम टॉपर्स को छोड़ दिया जाए, 2-3 टॉपर्स को, तो वो स्ट्रगल करते हैं। और मैंने आईआईटीज में भी ये फील किया है, जिनके मैथमेटिक्स ऑप्शनल हैं या फिर एंथ्रो ऑप्शनल्स हैं, दे आर फेसिंग ट्रबल विद द ज्योग्राफी क्वेश्चंस विच आर कमिंग इन पेपर 1। एंड इंटरेस्टिंगली अगर मैं बात बताऊं, तो जो मेरे इंडस्ट्री के नोट्स थे, खासकर जब से एक क्वेश्चन जीएस 1 में इंडस्ट्री का आने लगा है, तो जो मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल के नोट्स थे, खासकर हिमांशु सर के जो नोट्स थे, और वो आप विश्वास करो कि लगभग आईआईटी में जो भी प्रिपेयर कर रहे थे, जो इंडस्ट्री से सफर कर रहे थे कि इंडस्ट्रीज को कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि कंसोलिडेटेड मटेरियल अबाउट ऑल इंडस्ट्रीज, चाहे वो आयरन एंड स्टील हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, शुगर केन इंडस्ट्रीज हो, तो मेरे पास ही नोट्स थे। उन्होंने मुझसे ही कहा था कि आप अपने ऑप्शनल के थ्रू कुछ हेल्प कीजिए इंडस्ट्रीज में, कि ये क्वेश्चन सही तरीके से वहां पे डिक्रिप्ट नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से जीएस 1 में डायरेक्ट ज्योग्राफी की हेल्प है। इसी प्रकार अगर हम जीएस 3 को देखें, तो उसमें जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, और जो उसमें इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट है, इवन इंटरनल सिक्योरिटीज में जो बॉर्डर वाला पार्ट है, वो सभी पार्ट्स कहीं ना कहीं जो एक अच्छा वैल्यू एडेड कंटेंट आपको मिल सकता है, एक अच्छी तरह डायग्राम आप बना सकते हो, वहां पर भी ज्योग्राफी बड़ी लेवल पे हेल्प करता है। और इसी प्रकार अगर हम ऐसे में देखें, जैसे कि इस बार जो टॉपिक आया है, कि जो पहला ही टॉपिक था, फॉरेस्ट इज द बेस्ट बेस्ट केस स्टडीज फॉर द इकोनॉमिक एक्सीलेंस, तो कहीं न कहीं जिसकी जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उसके पास मल्टीपल केस स्टडीज होंगी, एग्जांपल्स होंगे, फैक्ट्स होंगे, वो बेटर तरीके से जो फॉरेस्ट को डिफाइन कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल में ही एक एडवांटेज नहीं है, इवन आपकी जो डायग्राम मेकिंग एबिलिटीज हैं, इससे बहुत इंप्रूव होती हैं। आपके अंदर जो टेंडेंसीज हैं, नंबर ऑफ एग्जांपल्स केस स्टडीज लिखने की, वो इससे इंप्रूव होती हैं। और जीएस 1 जीएस 3 में तो इसका एक डायरेक्ट रेलिवेंस है। और इसी में अगर मैं ऐड करूं तो अभी रीसेंट टाइम में जो अभी रीसेंट प्री हुआ है, उसमें भी अराउंड 15-16 क्वेश्चंस वर फ्रॉम ज्योग्राफी। ठीक है, 18 क्वेश्चंस, उसमें सारे मैपिंग हो गई आपकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस की। और जो भी ज्योग्राफी से जो इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स टेक्निकल भी थे, तो उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला क्या है कि एज पे रहेगा हमेशा ही। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है जिनका, जो भी क्लासेस के अंदर फाउंडेशन के अंदर, जैसे सर भी काफ़ी बार क्या है कि उसको एम्फोसाइज कर रहे हैं, मैं भी काफ़ी बार बोल रहा हूँ क्लासेस के अंदर कि यू हैव टू रिलाई ऑन नोट्स, मल्टीपल टाइम रिविजन्स, एंड देन यू डू द आंसर राइटिंग। बट स्टूडेंट्स आर नॉट सीइंग टू बी कन्विंस, वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं उस चीज़। ठीक है, उनको लग रहा है कि अभी भी यार कुछ और करना है इसके लिए। तो ये जो और वाला फैक्टर है यूपीएससी, क्योंकि इतनी बड़ी जॉब है, और उस इतनी बड़ी जॉब के लिए अगर आप बेयर मिनिमम करते हो, तो आपको खुद ही लगता है कि यार कुछ ना कुछ कम कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो वो कन्विंस कैसे करें उनको, या फिर उनको क्या उस लेवल पे ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, कि वो चीज को क्या है कि सिंपल और स्टूपिड रखें, ताकि वो क्या है कि आगे जल्दी पहुंचे औरों से। जी सर, ये बिल्कुल सही है कि कई बार खुद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कई बार कई स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि ये इतने से क्या ये सफिशिएंट रहेगा, बुक्स नहीं रीड करनी है, या फिर और इंटरनेट्स पे जो रिसोर्सेस है उनको नहीं एक्सप्लोर करना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कंटेंट है, खासकर गाइडेंस का, वो सफिशिएंट कंटेंट है, चाहे वो 500 प्लस का हो, या फिर क्लास की जो नोट्स हैं, वो सफिशिएंटली लगभग कॉम्प्रहेंसिवली सभी टॉपिक सिलेबस के अच्छी तरीके से कवर्ड कर देते हैं। इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को एफर्ट्स देने हैं, तो बेसिकली वो ट्राई करे मल्टीपल केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स का कंपाइलेशन करना, रेदर देन बुक्स को ब्लाइंडली रीड करना, क्योंकि उसका कॉस्ट इफेक्टिव मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नहीं है। और
बेकार में हमारा अटेम्प्ट खराब हो, मार्क्स नहीं आए और हम एक नेगेटिव फोर्स बने। इससे बेटर ये है कि जैसे कि आप मेरी अगर 3-4 इयर्स की जर्नी देखें, तो मल्टीपल टाइम्स ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल के थ्रू मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी है, दिए हैं और हर बार स्कोर अच्छा किया है। तो मेरा भी खुद का यही मानना है कि ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल में जो एक लिमिटेड एडवाइस है सर की, कि क्लास नोट्स 500 प्लस का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इस पे एक बार ट्रस्ट करो और इसको कंसोलिडेट करो, मेमोराइज करो एक फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स, डायग्राम्स को, और ट्राई करो इनको रेप्लिकेट करना अपने आंसर्स में। एंड आई कैन एश्योर यू कि आपके साथ एकदम कहते हैं वंडर्स हो जाएंगे, आपके मार्क्स इमीडिएटली 40-50 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आएगा। और ऐसा कहना कि सबका सिमिलर कंटेंट हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। कभी भी दो आंसर सिमिलर नहीं हो सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल लेवल का इनोवेशन, क्रिएटिविटी हमेशा रहती है, तो वो सिमिलर नहीं रहते हैं। तो ये जो प्रेजुडिसेस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं जो बना रखे हैं ज्योग्राफी को लेकर, मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। और मेरा एक सही एग्जाम्पल है जो ये बार बार बता रहा है कि सिमिलर रिसोर्सेज से, सिमिलर टीचर्स पर ट्रस्ट करते हुए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो आपको कभी भी चीट नहीं करता, बार बार आपको अवॉर्ड करता है। एक इसमें मैं ये भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आई विल ऑल्सो पिन इन द डिस्क्रिप्शन द टेलीग्राम चैनल ऑफ अजय यादव। और उसमें जो ये कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, उसमें इनके नोट्स आप देखोगे तो इतने ज़्यादा कंडेंस्ड नोट्स हैं, कंसोलिडेटेड नोट्स हैं कि मुझे लगता है कि शायद अगर उसको एक दिन भी बैठे तो सारे रिवाइज कर सकते हैं अपन। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अगर आप 2 घंटे 3 घंटे बैठते हो तो आप पेपर 2 को शायद 2 बार रिवाइज कर सकते हो, इतना कंसोलिडेशन है। और वर्ड बाय वर्ड अगर मैं देखूं, उसको डिकोड करूं, तो सारा का सारा जो क्लास नोट्स हैं, लेट्स से 200 पेजेस का, तो वो 2 से 5 या 10 पेजेस के अंदर क्या ही कंसोलिडेट हो रखा है। ठीक है, बट अभी भी जैसे जो इस बार स्टूडेंट्स दे रहे हैं मेंस 2023, उनके लिए एक जो इंपॉर्टेंट क्वेरी आ रही है कि पेपर 2 के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा लग रहा है कि भैया जीएस ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है। और वो जो जीएस ज्योग्राफी का क्वेश्चन है पेपर 2 का, उसको कैसे ज्योग्राफिकल बनाएं। ठीक है, तो हम तो कह कह के थक गए, सर फ्रेमवर्क बना बना के थक गए। ठीक है, बट वो कोई यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि लिमिट्स टू ग्रोथ एक फ्रेमवर्क है हमारे पास, मॉडल्स थ्योरीज एंड लॉज के अंदर हमारे पास कितने सारे फ्रेमवर्क्स कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो हम पेपर 2 में लगा सकते हैं। हम लगाना है, हमें हमें यूज करना है, अब्यूज नहीं करना है, ऑफ कोर्स सी बात है। बट फिर भी क्या है कि स्टूडेंट जैसे स्पेस, ट्रेड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के अंदर स्पेस से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही जेनरिक जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कैसे ज्योग्राफिकल बनाएं, और उसकी रेसिपी क्या होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स क्या कॉन्फिडेंट रहें कि भैया उसके लिए कुछ नया नहीं पढ़ना है, वो सेम जो फ्रेमवर्क्स हैं आपके पेपर 1 के, वो हम यूज कर सकते हैं पेपर 2 में। तो ऐसे कुछ अगर एग्जांपल्स या इलस्ट्रेशन के फॉर्म में अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो इट विल बी बेटर। ये बिल्कुल सही है कि कई बार ज्योग्राफिकल जो ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि ये कैसे डिलीनेट करें कि ये जीएस का आंसर है कि ऑप्शनल का आंसर है। तो खासकर अगर मैं पेपर 2 के बारे में बात करूं, तो सबसे पहला तो जरूरी है कि जो हमारे पेपर 1 की जो नॉलेज है, जो उसमें हमने ज्योग्राफिकल कीवर्ड्स, ज्योग्राफर्स के जो नेम्स तो मेमोराइज किए हुए हैं या फिर जो समझे हैं, इसके अलावा जो डायग्राम्स हैं, केस स्टडीज हैं, उनको हम ट्राई करें अधिक से अधिक हम उसको रेप्लिकेट करें अपने पेपर 2 में। जैसे कि अगर मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि पहला, जैसे कि अगर हम जीएस में आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। बट सेम अगर हम ज्योग्राफी में लिखेंगे, खासकर ऑप्शनल में, तो लिखेंगे इंडिया इज ड्राइविंग टुवर्ड्स द मैच्योरिटी। सिमिलरली जैसे कि एनवायरनमेंट में तो हम लिखेंगे कि इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। लेकिन अगर ज्योग्राफिकल ऑप्शनल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि इन इंडियन सिनेरियो इनऑथेंटिक एटीट्यूड हैज बीन इन डिक्लाइनिंग ट्रेंड, इस टाइप से। तो ज्योग्राफिकल जो कीवर्ड्स है ना, जो आपने पेपर 1 में रीड किए हैं, ट्राई करो कि उनको रेप्लिकेट करो मैक्सिमम नंबर में पेपर 2 में, इवन अपने ज्योग्राफिकल आंसर्स में। तो पहला तो यही है कि ज्योग्राफिकल कीवर्ड्स, ज्योग्राफर्स के नेम्स, ये अधिक से अधिक, और ज्योग्राफिकल जो थ्योरीज हैं आपकी, मैक्सिमम टाइम्स ट्राई करो कि इनको रेप्लिकेट कर सको अपने आंसर्स में। जो जीएस की जो कॉमन वर्ड्स है उनकी जगह इन वर्ड्स को हमको यूज करना है, और ये आपको एम्पल ऑफ टाइम्स मिल जाएंगी आपके 500 प्लस के नोट्स में, क्लास नोट्स में। और दूसरा है कि जैसे कि सर भी बताएंगे आपको कि जो करंट अप्रोचेस में है ज्योग्राफी में, एक रीजनल अप्रोच एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है। तो कई बार मेरी जो जेएनयू के जो प्रोफेसर से उनसे भी बात हुई है, तो थोड़ा अपने आंसर्स में जो रीजनल अप्रोच है उसको मोर बिल्डअप करो। जो डायग्राम्स आप बनाओ, जो मैप्स बनाओ, उसको उसके नंबर्स को एक तो इंक्रीज करना है। हर बार हमको इंडिया इंडिया का डायग्राम बना के उसमें कर्नाटका केरला में डिमार्केशन नहीं करना है। वो हमारे पास एक अपनी स्टैंडर्ड अप्रोच है, लेकिन ट्राई करो कि थोड़े रीजनल डायग्राम्स बना सको। जैसे कि केरला का अगर डायग्राम है तो पेनिसुलर इंडिया का बना दिया, या कच्छ पे क्वेश्चन है तो एक गुजरात का डायग्राम अच्छा सा बड़ा सा बना दिया, वहां पे डिमार्केट कर दिया। फॉर इंस्टेंस अगर क्वेश्चन आपका अफ्रीका में साहिल रीजन पे है, तो सिर्फ हमने जो साहिल रीजन वाला पोर्शन है अफ्रीका का वो दिखाया, उसको थोड़ा अच्छी तरह डिलीनिएट करा, एक आध दो अबव और लोअर में कंट्रीज को डिमार्केट किया। तो नंबर ऑफ अपने मैप्स, डायग्राम्स को क्वेश्चंस में इंक्रीज करो।
और तीसरा जो है वो है केस स्टडीज, फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स। खासकर मैं केस स्टडीज बोलूंगा। तो जितना हो सके नंबर ऑफ केस स्टडीज आप इम्प्रूव करो और उसका नंबर बढ़ाओ। जैसे कि अगर मैं अपनी खुद का एग्जांपल दूं तो मैंने भी लगभग हर एक आंसर में एक दो केस स्टडीज को पुटअप किया था। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि केस स्टडीज में हमको नंबर ऑफ वर्ड्स जहाँ लिखने होते हैं उसको एक ब्रीफ उसके बारे में एक आइडिया देना होता है। तो जहां भी आपको लगे कि आपने एक दो केस स्टडीज अच्छी तरीके से लिख दी हैं तो ट्राई करो कि अदर पॉइंट्स में आप एग्जाम्पल्स के थ्रू जो एक हल्का सा एग्जाम्पल्स दो या फिर छोटा सा डायग्राम बना के उसको सब्सटेंशिएट करो अपनी आर्गुमेंट को। तो ये तीन चीजें, पहला जोग्राफिकल नेम्स, कीवर्ड्स, जोग्राफिकल थ्योरीज, दूसरा डायग्राम्स, मैप्स, और तीसरा एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज एंड फैक्ट्स। ये तीन चीजें अगर आप किसी भी आंसर में जो आपको लग रहा है जीएस का आंसर उसमें करोगे तो मेरा ऐसा मानना है एटलीस्ट अगर दो चीज भी कर रहे हो ना आप तो वो आपका जोग्राफिकल आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार से हमें टेंशन लेने की नीड नहीं है कि ये हमारा जोग्राफिकल आंसर नहीं है, वो सफिशियंट आपने उसमें चीजें इनपुट्स कर दिए हैं जिससे कि वो आपका जोग्राफिकल आंसर बन चुका है। बट एक लास्ट इस चीज को और इलिस्ट्रेट करवाने के लिए मैं सर से हमेशा इसको फोर्स करवाता हूँ, जैसे कि सर सैटेलाइट का क्वेश्चन आ रहा है 2-3 साल से कि IRNSS या नाविक जो प्रोग्राम है वो कैसे क्या है कि ज्योग्राफी के अंदर प्ले आउट होता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनने उसके लिए आपने 500 के लिए एक फ्रेमवर्क बना रखा है। तो वो फ्रेमवर्क अगर आप इलिस्ट्रेट कर पाओ एक बार, ठीक है, ये जो सैटेलाइट वाला क्वेश्चन हो गया या फिर अपना स्पेस टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर आ रहा है, उसके लिए हमारे पास क्या एक सेट टेम्पलेट है, पैराग्राफ है, या फिर हम उसको कैसे अच्छे से क्या है कि इलस्ट्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल जैसे अगर हम सैटेलाइट का ही क्वेश्चन को अगर देखें तो अगर हम देखें तो इंडिया में 2 तरह की बेसिकली सैटेलाइट्स हैं। एक जो है रिसोर्स मैनेजमेंट सैटेलाइट्स हैं और दूसरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। तो अब बेसिकली इन दोनों के ही केसेस में पहला जब हम रिसोर्स के बारे में लिख रहे हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो ज्योग्राफी में जैसे हमारा एक टॉपिक है रिसोर्स का, तो कितने रिसोर्सेज हैं और उनके पर्टिकुलर मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है, वो बताएंगे। और वहां पर अगर हम डायग्राम्स को यूज कर सकते हैं, वहां पर हम अगर हम एग्जांपल्स को यूज कर सकते हैं तो हमारा आंसर ज्योग्राफिकल हो गया। जब बात आती है कम्युनिकेशन की तो वहां पर एक हमारा एक सेट फ्रेमवर्क है जो कि डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन से हम अ, लेते हैं हैगर स्टैंड का मॉडल। तो बेसिकली ये क्या करता है कि टाइम और स्पेस को श्रिंक कर देता है इस तरह की टेक्नोलॉजीज। तो जो चीजें एसेंचुअली हम हमें ज्यादा टाइम लगेगा कम्युनिकेट करने में कहीं पर और वो ज्यादा दूर है तो वो बेसिकली उसको श्रिंक कर दे रहा है, वो चीजें जल्दी हो जाती हैं। तो उस फ्रेमवर्क को यूज करके हम उसमें भी फिर ज्योग्राफिकल आंसर्स लिख सकते हैं। तो यही है कि बेसिकली पेपर 2 में जो भी चीजें हैं हर के पीछे एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, हर टॉपिक के पीछे। आई आपको क्या करना है कि वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आइडेंटिफाई करना है, फ्रेमवर्क्स बनाने हैं, और वो जब आपके पास फ्रेमवर्क्स रेडी हैं तो उसके बाद आप जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है इंडिया से रिलेटेड वो आप उन फ्रेमवर्क्स में फिट कर देते हो। इनफैक्ट यही रीजन है कि मैं अपने क्लास में सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि पेपर 2 के लिए स्टार्टिंग में बुक ही मत पढ़ो। पेपर 2 के लिए अगर बुक पढ़ना भी है तो जब क्लासेस हो जाए उसके बाद पढ़ो, क्योंकि एक बार आप बुक पढ़ लेते हो तो आपकी जो थिंकिंग है वो कंस्ट्रेंड हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, आप उसके बाहर नहीं निकल पाते हो। और अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो आप पेपर 1 को यूज करके फ्रेमवर्क्स बना रहे हो और फिर वो फ्रेमवर्क में फिर आप बुक पढ़ोगे तो वहां से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके वहां पर डाल सकते हो। और वो जो चीज प्रोड्यूस होती है वो दैट इज मतलब आई वुड से कि ड्रीम ऑफ जोग्राफर्स है। तो ज्योग्राफी में हमेशा एक इशू रहा है कि जोग्राफर्स जो है वो रीजनल ज्योग्राफी हमेशा कोर रहा है ज्योग्राफी। तो हमेशा वो कोरोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं। कोरो का मतलब होता है रीजन और लॉजी मतलब साइंस। बट ज्यादातर टाइम क्या रहा, वो कोरोग्राफी ही रह गया है, वो डिस्क्रिप्शन रह गया रीजन्स का। तो जब आप ऐसा करते हो कि पेपर 1 से साइंटिफिक थ्योरीज उठा करके और उसके बेसिस पर चीजों को समझा रहे हो पेपर 2 में, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, कोरोलॉजी बना रहे हो। और वो मतलब इवन एनी जोग्राफर ही वुड बी लाइक thrilled to see such kind of answers. सो मतलब वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड एंड आई एम डन फ्रॉम फॉर द डे। इसमें अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइम ही टुक एडमिशन इन 500 प्लस, और जिसने फर्स्ट बार जो मॉड्यूल स्टार्ट हुआ था पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, तो अजय एक्चुअली रोट 50 to 60 आंसर्स ऑन पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। और उसने वो सर को पूरा का पूरा बंच दिया एंड सर गेव इट टू मी, आई एवेलुएटेड ऑल दोज आंसर्स। एंड उसने फर्स्ट टाइम ही इतनी मेहनत कर ली थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्कोर 273,
ठीक है, तो फर्स्ट टाइम का कंसोलिडेशन ही उसको क्या कि रिफ्लेक्ट हो रहा था आंसर्स के अंदर, क्वेश्चंस आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं, अच्छी तरीके से उसको आंसर्स लिखे हैं, तो वो चीज रेप्लिकेट हो रही थी. अगेन आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क द लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर लुकिंग बैकवर्ड्स कुछ चीजें अगर चेंज करनी का मौका मिलता आपको वापस, ठीक है, तो व्हाट वुड हैव बीन एंड व्हाट इज योर प्लान नाउ मूविंग अहेड? तो फर्स्ट थिंग आई थिंक, जैसे कि मैंने कहीं क्लासेस नहीं की थी तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा था स्टार्टिंग में, खासकर फाउंडेशनल क्लासेस में, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया उस टाइम, क्योंकि जो भी रहा हो, रिसोर्स स्कार्सिटी रहा हो, जो भी प्रॉब्लम रहा हो, या फिर गाइडेंस का इशू रहा हो, तो मुझे लगता है कि पहला अगर मैं अपनी अप्रोचेस में चेंज करूं, तो एक जो मैंने क्लासेस नहीं की थी फाउंडेशनल क्लासेस, जिससे कार्ड में सफ़र करा, मुझे ये डिफरेंशिएट करने में काफ़ी टाइम लग गया कि स्टैटिक अलग चीज़ है, वैल्यू एडिशन अलग चीज़ है. तो मुझे लगता है कि किसी के पास अगर अपॉर्चुनिटी हो और उसे किसी प्रकार का इशू ना हो, तो पहला तो फाउंडेशनल क्लासेस करनी ही चाहिए. उससे बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कवर हो जाता है, और खासकर बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, कैसे अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी है, अप्रोचेस बनानी है, उसके लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स या मल्टीपल फेलियर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती है. दूसरा ये था कि जो कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स है, मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी लेंदी बनाए थे, जो कि मुझे बाद में ये लगा कि 1 या 2 रिवीजन करने के बाद अगर हम कंसोलिडेशन पर जाएँ, तो नोट्स और बेटर बन सकते हैं. तो जो एक्स्ट्रा स्टफ़ जो हम लिख रहे हैं उसमें, उसको लिखने की नीड नहीं पड़ती है. तो ये मैं आपको भी एडवाइस करूँगा कि जब भी आप कंसोलिडेशन के लिए जाएँ, तो ट्राई करें कि 1 या 2 रिवीजन हो जाएँ आपके, उसके बाद कंसोलिडेशन पे जाएँ. तीसरा, जो मुझे लगता है कि जो मैंने 2022 में जो अप्रोच फॉलो की थी, उससे पहले कि मैं अक्सर जो मेरे डायग्राम्स, केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स को अलग अलग बनाता था, लेकिन इस बार मैंने ये अप्रोच फॉलो नहीं की, क्योंकि बाद में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इस एग्जाम्पल को कहाँ पुटअप किया जाए, या फिर इस डायग्राम को कहाँ पुटअप किया जाए. 2022 के अटेम्प्ट में मैं ये चेंजेस लेकर आया कि मैंने मेरे पॉपुलेशन का अगर नोट्स बना रहा हूँ, तो उसी में उसकी केस स्टडीज, जो टॉपिक है उसी में लिख रहा हूँ, वहीं पे डायग्राम उसका बना रहा हूँ, उसी केस स्टडीज लिख रहा हूँ, ताकि रिवीजन के टाइम पे ये मुझको स्ट्राइक करता रहे कि ये जो 3 चीज़ें 4 चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, इसको पॉपुलेशन के इस सेगमेंट में यूज़ करना है, या फिर इससे रेलेवेंट या इससे रिलेटेड सेगमेंट में यूज़ करना है. तो ये कुछ मिस्टेक्स जो मुझसे हुई हैं, तो मुझे लगता है कि ये मैं चाहूँगा कि जो न्यू जनरेशन है उसके द्वारा ना हो, रेक्टिफाई करें वो इसको. और तो मुझे लगता है कि सर ये एक फाउंडेशनल कुछ छोटे-छोटे एरर्स रहे हैं मेरे से. ठीक है अजय, आई थिंक कि हमने सफिशिएंट बात कर ली है और आगे भी करते रहेंगे. तो it will be very good for today. Good to go. So, if you have any last thing to say to the student community. द लास्ट थिंग, आई थिंक, सबसे पहले तो थैंक्स सर को, सर ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, सर ने अपना एक बहुत प्रीशियस टाइम भी दिया यहाँ पर, और इतना इंगेज होने के बाद, आज 5-6 आवर्स की क्लासेस होने के बावजूद भी सर ने टाइम निकाला. तो फर्स्ट थिंग आई विल से कि ज्योग्राफी एस एन ऑप्शन में कोई इशू नहीं है, किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं, किसी भी प्रेजुडिस या टाइप से आप बिल्कुल मत जाइए. ज्योग्राफी मुझे मल्टीपल टाइम्स अवार्ड किया है, तो ज्योग्राफी एस एन ऑप्शन में कोई इशू नहीं है. कोई भी कुछ भी आपसे कहे, इस चीज़ पर आप बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिए. दूसरा, अगेन द सेम थिंग आई विल रिट्रेट, कि कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स को प्रेफर कीजिए, इसको बनाइए, मेंस का ये कोर स्ट्रेटेजी का पार्ट इसका बनाइए, चाहे वो जीएस में या एसए में या फिर आपका ऑप्शनल हो. कंसोलिडेशन और एक लिमिटेड अमाउंट में उसका मेमोराइजेशन अगर आप करेंगे, तो आपके आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी. तीसरा ये है कि जो जैसे कि अगर हम पिछले 2-3 साल से अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस देखें, खासकर जीएस में, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन एक बड़ा इशू नजर आ रहा है. तो अगर आप इस बार भी अटेम्प्ट दे रहे हैं और मीन्स लिखने जा रहे हैं, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए. एकदम हमको क्वेश्चंस का आंसर नहीं लिखना स्टार्ट करना है, थोड़ा सा सही से इंटरप्रेट करना है, ताकि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन मिस कर दी, तो उससे वो ब्लंडर हो जाएगा और आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है मार्क्स में. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए. तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट डिस्कशन रहा है आज का, और जो मुझे एडवाइस देनी थी वो मैं आपको दे दी है. बहुत बहुत धन्यवाद. चलो अजय, thanks for coming, and it has been a pleasure to talk to you. I think it was a very good conversation we had, and congratulations again. Thank you, sir.